ना 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 आया ही नहीं, यहीं से आना थोड़ा लंबा उनको भी बोल देते हैं। अरे संदीप, हेलो हेलो, तुम्हें सारी इकट्ठे बैठे हो, तुम लोग बैठ के इतनी बैठे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग वॉलंटियर्स टू ओवर हियर। बैठ जाओ, So we are occupying each to them. Thank you. You may please occupy your seats. May I request S.C. Malik sir, Rishi Chaudhary sir, kindly welcome our guests with a bouquet of flowers. May I also request Pradeep Rawat sir, Man sir. Please put your hands together. May I request Honorable Vice Chancellor sir to kindly welcome General D.P. Watt sir. Yudhvi sir, you are also kindly requested to join for the welcoming. Honorable Vice Chancellor sir, may I request you to kindly welcome Sitaram Vyas ji. जोरदार तालियां हो जाएं, ये स्वागत है अतिथियों का। May I request Man sir to kindly welcome Honorable Vice Chancellor sir. On behalf of Maharishi Dayanand University, welcome you all to the launch ceremony of PM Usha, that is the Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan scheme. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has very kindly consented to digitally launch the associated projects through video conferencing in a short while from now. The launch will be live streamed, and hence Maharishi Dayanand University is organizing the initiation event to coincide with the launch ceremony at this auditorium where we are all present, that is the Tagore Auditorium. We are all really proud and privileged that under the able leadership of Honorable Vice Chancellor Professor Rajbir Singh ji, Maharishi Dayanand University is one among the 2 universities of Haryana to have been shortlisted for the grant of rupees 20 crores for the component grants to strengthen universities under the Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, that is PM Usha scheme. So you may put your hands together for MDU
and able leadership of Honorable Vice Chancellor, sir. We are delighted to welcome dignitaries, distinguished guests, illuminaries, guests from administration, deans of faculties, heads, directors, statutory officers of the university, faculty members from various departments of the university, research scholars, and dear students too. May all I request Pradeep Rawat sir to kindly welcome Manmohan Goyal ji. जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथियों के लिए. Request the august gathering to please rise for Kulgeet. अनुसंधान से विज्ञान से हम ज्ञान को अर्जित करें, निस्वार्थ हो संभाव को इस राष्ट्र को अर्पित करें। साने सदा विश्व का सम्मान ही हम सबका स्वाभिमान हो। जब कोई व्यवधान हो, अनुष्ठान हो या ज्ञान हो, संस्कृतियों का संचय उत्तम वृत्तियों का ज्ञान को पूजित रहना है। वेदों को जग में माना है। विश्व को नमन करें, राष्ट्र का नवनिर्माण हो, विश्व को प्रणाम हो। Thank you, everyone. You may please take your seats. May I request Director RUSA, Professor Pradeep Rawat sir, to kindly tell about the scheme and its benefits. Sir, please. My dear colleagues and dearest students, today on this occasion of the launch of the PM Usha grant, it has been assigned to me to tell something about PM Usha, how it conceived and what we are doing at Maharishi Dayananda University. With great pleasure and enthusiasm, I take this opportunity to welcome each and every one of you to this auspicious gathering where we commemorate the evolution of our educational landscape through the prism of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan. This is a visionary initiative spreaded by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, aimed at fostering a quality and skill-based education system. This was originally conceptualized as Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, and then this centrally sponsored scheme embarked on a noble journey to enhance access, equity, and excellence in higher education institutions across India's diverse states and union territories. Since its inception, RUSA has been a beacon of progress, bringing greater efficiency, transparency, and accountability to our education endeavors. If we talk of the RUSA participation of Maharishi Dayananda University,
I feel privileged and blessed when I'm saying that we participated every time. That means 3 times in RUSA 1.0, RUSA 2.0, and then this transformed name of the RUSA, what we call Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, named as PM Usha. And all the 3 times we were approved for the grant. Firstly, we were approved for 17 crore 21 lakh and 10,000 rupees in RUSA 1.0, and we completely utilized that grant. Each and every penny of the grant was utilized well in time. And if to name some of the key features of the utilization, we created the Central Instrumentation Lab worth rupees 3 crore and 15 lakhs. We were the first one who were digitally launched for a project of 2 crore 50 lakh by the then Education Minister, MHRD, Shri Prakash Javadekar ji. If you do remember, it was at that moment. And then we did a lot of activities for utilizing this grant, like we provided smart classrooms for every department, and the IT infrastructure was more strengthened with this grant. Again, we were approved 50 crores in RUSA 2.0, but unfortunately, maybe because of the corona tenure, we were not able to receive that grant. But now we are enough blessed through the central and state governments that we have been receiving this GSU, that stands for Grant for Strengthened Universities, worth 20 crores, and it is there that complete 20 crores have been approved for our university. And with that university, one more university is there, that is BPSM. Only 2 universities have been granted. And with these words, thank you very much for your kind support and participation in utilizing this grant. Thank you very much. Thank you very much, sir. जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर के इरादे मजबूत हों कि अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ हम कभी चूकेंगे। और ये जो रूसा का ये प्रोजेक्ट हमें PM उषा का मिला है, इसी का एक उदाहरण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को, प्रोफेसर राजवीर सिंह जी। सभी को मेरा नमस्कार। माननीय जनरल DP वत्स जी, प्रोफेसर सीताराम व्यास जी, श्री मनमोहन गोयल जी, हमारे डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर AS मान, रजिस्ट्रार प्रोफेसर युद्धवीर सिंह, विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस सेंटर्स, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, my dear students from different discipline and friends from media. First of all, let me congratulate you all the stakeholders of our university for getting this project, PM Usha project of 20 crore to our university. As told by Professor Pradeep Helawat,
who is our director, RUSA project. Today, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, he would be launching this PM USA project for higher education institutions. A total grant of more than 3,600 crore is going to be released to 78 higher education institutions. I am happy to share with you that our university, along with one more university in Haryana, we are also receiving this grant under the PM USHA project, which is Uttar शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट. ये जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारी यूनिवर्सिटी को जो मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है. हमारी लैब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा है. डिफरेंट तरह के लैब्स में इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है. कुछ नई इनिशिएटिव शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा है. हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि भाई किस तरह से जो है वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है, आदरणीय मनमोहन गोयल जी मेयर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सहयोग से हमने वो पायलट प्रोजेक्ट चलाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारा. और अब उसी प्रोजेक्ट में ये टोटल 20 करोड़ का जो कंपोनेंट है उसमें हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी है. उसमें हमारा जो है 4 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है, एक जिसमें BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उसी प्रोजेक्ट का पार्ट था. बोटेनिकल गार्डन जो है एस्टेब्लिश करने के लिए उसी प्रोजेक्ट का हमारा पार्ट था. एक डिजिटल लर्निंग सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट का पार्ट हमारा रहा है. तो ये सारे कई और इनिशिएटिव हैं. और जैसा डॉक्टर प्रदीप अहलावत ने बताया कि हरियाणा में आज 54 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 20 स्टेट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 6 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय जो है सभी 54 विश्वविद्यालयों में से जिसको ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अब तक जो है 3 बार ग्रांट्स दी जा चुकी हैं. रूसा 1, रूसा 2 और रूसा 3. वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 54 जिसमें तीनों में हमें जो है प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हुआ. और इतना ही नहीं, पिछले 5 साल से संबद्ध विश्वविद्यालयों में हमारा ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो हरियाणा में, जो आज देश में 1100 विश्वविद्यालय हैं और उसमें से 54 विश्वविद्यालय हरियाणा में हैं. आवर्स यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो लगातार पिछले 5 साल से पहले देश के पहले 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान जो है बनाए हुए है. वी आर A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी. और लगातार हमें प्रदेश सरकार का सहयोग जो है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जो है आशीर्वाद लगातार हम पर बना रहता है और हमें इनकरेज करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए. और उसी का परिणाम है कि ये विश्वविद्यालय लगातार प्रगति भी कर रहा है. मैं माननीय सांसद महोदय, रोहतक के सांसद जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं. और उनके साथ साथ मैं माननीय श्री मनीष ग्रोवर जी भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं.
श्री सतीश नानल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और भी गणमान्य व्यक्ति, जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अभी 11:30 बजे जो है माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और ये 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है विभिन्न राज्यों के जो शिक्षण संस्थान हैं उन संस्थानों को जो है जो ग्रांट्स दी जा रही हैं, यानी जो PM उषा जो प्रोजेक्ट के तहत जो ग्रांट्स दी जा रही हैं, वो जो लॉन्च कार्यक्रम जो है वो अभी वो कार्यक्रम होगा। सभी गणमान्य व्यक्ति और प्रेस के जो साथी हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप अपने अपने स्थान पे शांतिपूर्वक बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख होंगे। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अनुशासन बड़ा जरूरी है। हर कुछ आस्ते है। अनुशासन बड़ा जरूरी है। इस करी अपने अपने थारे पर बेही आओ बड़े आराम करने। बस किसी के चिरे च माननीय प्रधानमंत्री जी आवे कर दें। तुस अपनी अपनी थारे पर बेही आओ। जी आवे कर दें। तुस अपनी अपनी थारे पर बेही आओ। अनुशासन बड़ा जरूरी है। हर कुछ आस्ते है। अनुशासन बड़ा जरूरी है। इस करी अपने अपने थारे पर बेही आओ बड़े आराम करने। बस किसी के चिरे च माननीय प्रधानमंत्री जी आवे कर दें। तुस अपनी अपनी थारे पर बेही आओ।
क्यों क्या मैडम जो अपने वाली एक्टिविटी
स्पीच रखिएगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मंदिरों के शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। कंपनी का है। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ पहुंचा है। आप सबके सामने हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद है हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, व बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से
और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मंच हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले। दलित हो, आदिवासी भाई हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की मांग थी उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुर्जर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, सीना हो, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी, पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है।
90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई और आज मैं कहना चाहता हूं पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जहां 40 ई सर्विसेज थी, आज 1100 से ज्यादा ई सर्विसेज देकर के जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। संपूर्ण पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई। जो भी तंजीमें थी उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था, अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग में इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था, वहां देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहां झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में सभी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। 2 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, NIFT, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का दोहन शुरू हुआ। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। वह व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। यह आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, यह आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उपराज्यपाल महोदय। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वह अपने संबोधन के लिए पधारे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सबके हर दिल अजीज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारे सांसद भाई जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहां आने की सूचना पहुंची है, उस दिन से ही यहां सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था, वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण का। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यह भीषण बाढ़ आई, तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, यह आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे